This is the fourth video lecture of chapter 17, Refraction and Dispersion of Light, class 8 Science. In this video lecture, we would be understanding the structure of human eye. Okay, and our world is basically very beautiful, so to look at, to observe those beautiful things, amazing things, wonderful things, etc., etc., okay, we require these two essential or a pair of essential structure, that is nothing but what? Eye. Okay, so basically we would be first of all understanding some basic parts of human eye, and then we would be moving down to the formation of image by the lens present in the eye. How can we see the object? How the image of the object which we are seeing is formed inside our eye, and how our brain interprets that what the color is, what the object is, what is the size of the object. That all we would be discussing in this video lecture. That means basically in this video lecture we are going to focus on human eye, its basic structure, next how the image formation takes place, and what basically this image formation you would be studying in a heading known as accommodation of the eye. What is accommodation of the eye? Okay, and what is what are the different parts of a human eye that we are going to see in this video lecture. So let us start with eye, the natural optical instrument. Okay, when you look this diagram, okay, sorry for this mess, but this is how you can learn. Okay, this is not a mess, but this is how I learned. Okay, what is it? You first draw the diagram. Along with diagram, you study different parts. What are they and what are their functions? Okay, so diagram, path, definition or defining that term, and the function of that part, that we are going to discuss here. Okay, so you first draw this eye. Okay, first you draw this. While you are practicing, while you are learning, what you have to do, you have to draw this eye once, or else if you have short of time, what you can do is you take your science textbook. There is already this diagram drawn with labelings. What you have to do, you have to first of all, let us start with retina. Suppose retina is one of the parts. Okay, so let us start with retina. So you see here, this portion, the red shaded portion is the retina. And what is retina? Retina is the screen where image is formed. Okay, so whatever object you see through your eyes, the image of that particular object, you can get it on this screen. This is the screen. When I say that the image is formed on screen, that means the image formed by retina is real. The image formed by retina is, formed on retina is real, because you obtain this on screen. Clear? Next, this retina contains several nerve cells. So ये retina के अंदर okay, several nerve cells होते हैं. तो कैसे पता चलेगा कि इस पे इमेज बन रहा है? ये नर्व सेल्स सेंस करेंगे कि अच्छा इमेज फॉर्म हुआ. These nerve cells would be responsible for sending the कि अभी इमेज बना, ये ऑब्जेक्ट का इमेज बना, ये कलर वाला ऑब्जेक्ट का इमेज बना, कि येलो कलर का एक ऑब्जेक्ट है उसका इमेज बना. तो ये कैसे पता चला? By the help of sensory cells. So these sensory cells, or you can say nerve cells, not sensory, because sensory cells are the
part of nerve cells. Not making you confuses. You have to just know that what is retina. Retina is the screen, is acting as a screen where you get the image of the object which you are seeing. जो ऑब्जेक्ट को देख रहे हो उसका जो इमेज है वो रेटिना पे बनेगा. रेटिना क्या है? स्क्रीन है. अच्छा, क्योंकि स्क्रीन पे इमेज मिल रहा है तो इमेज कैसा है? व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज? रियल and inverted. Okay, real and inverted. This retina contains several nerve cells. These nerve cells help to sense the image. Apart from this, these nerve cells are of two types, cones and rods. What are cones? Cones are, sensitive. Cones are nerve cells which are sensitive to bright light. Okay, and detect color. So the cells which are sensitive to bright light and which are helping to detect color, अच्छा ये पर्पल है, ये रेड है, ये येलो है, that is done by cones. And rods, which are another kind of nerve cells, they are sensitive to dim light. Okay, so cones sensitive to bright light, rods sensitive to dim light. Cones can detect color also, to identify what color of the object is. So that is done by the cones, which is one of the nerve cells. And where do you find these nerve cells? Inside the retina. Okay, now the image formed on the retina is smaller than the object and is inverted. As I said, the nature of image formed on retina is real and inverted. Apart from this, if the image formed is smaller than the object, Okay. Now, once the image is formed, okay, here the image is formed, तो वो nerve cells ने sense किया, तो ये जो मैसेज है nerve cells को पता चला यहाँ पे image form हुआ, वो मैसेज we know nerve cells carry electrical signals. Nerve cells carry electrical signals. किसकी मदद से ब्रेन तक पहुंचेगा? यहाँ पे जो इमेज फॉर्म हुई वो नर्व सेल सेंस करेगी, लेकिन ब्रेन तक कैसे पहुंचाएगी? विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिक नर्व. सी, ऑप्टिक मतलब समथिंग रिलेटेड टू आई. सो ऑप्टिक नर्व की मदद से जो इमेज इंटरप्रेट हुआ वो ब्रेन तक जाएगा. ब्रेन वुड आइडेंटिफाई द इमेज और फिर उसको क्या करेगी? इरेक्ट करेगी और करेक्ट साइज देगी. करेक्ट साइज, क्योंकि जो इमेज बना वो तो स्मॉलर बना ना, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट. तो पता कैसे चलेगा कि जो इमेज का जो ऑब्जेक्ट का एक्चुअल साइज क्या है? जब तुम देख रहे हो अभी तुम्हें जब जितनी साइज का, अगर मेरे सामने विंडो है तो जितनी साइज की विंडो है उतनी ही मुझे दिख रही है. कैसे? तो देखो, जब इसका इमेज बना रही है रेटिना पे तो उसका इमेज उल्टा बनता है, इन्वर्टेड. स्क्रीन पे मिलता है इसलिए रियल है. चलो इतना समझ है. लेकिन स्मॉलर देन द एक्चुअल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मान लो विंडो है तो उसका एक्चुअल साइज जो है उससे स्मॉलर मेरे रेटिना पे बनता है. मुझे कैसे पता चलेगा कि एक्चुअल साइज विंडो का क्या है? तो वो जो रेटिना ने इमेज कैप्चर किया है, जो उस पे बना है, that is sensed by the nerve cells sent to the brain with the help of optic nerve. तो यहाँ कहीं पे क्या होती है? ऑप्टिक नर्व. तो ये ऑप्टिक नर्व क्या करती है? जो इमेज फॉर्म है उसको ब्रेन तक भेजती है. ब्रेन इंटरप्रेट करता है इमेज को. ठीक है, कैसे? तो उसको पहले तो इरेक्ट करेगा, उल्टा है तो सीधा करेगा, और क्या कि वो उसको करेक्ट साइज देगा, है ना. अगर स्मॉलर बना है इमेज तो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट कितना होगा वो उसको करेक्ट साइज करके अगेन वुड बी सेंडिंग सिग्नल, और फिर हमें वो इमेज, वो जो ऑब्जेक्ट है वो हमें सीधा दिखता है और जितनी साइज का है उतना ही दिखेगा. क्लियर? नेक्स्ट, दिस वाज ऑल अबाउट रेटिना. अब रेटिना से लिंक्ड एक और है, दैट इज ब्लाइंड स्पॉट. ब्लाइंड स्पॉट क्या है? इट इज द जंक्शन ऑफ रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व. देखो यहाँ पे ऑप्टिक नर्व है, यहाँ पे रेटिना है. जंक्शन ऑफ रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व.
ठीक है, वो होता है ब्लाइंड स्पॉट। क्यों उसे ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं? क्योंकि उस पोजीशन ऑफ रेटिना पे यू कैन नॉट गेट इमेज। व्हाई? सो वहां पे सेंसरी सेल्स नहीं होते। वो रेटिना और ऑप्टिक नर्व जिस जंक्शन पे मिलते हैं, तो उस पोर्शन पे जो रेटिना है उसमें सेंसरी सेल्स नहीं होते। दे सेंसरी सेल्स आर लैकिंग इन दैट पोजीशन ऑफ रेटिना which is merging with optic nerve. Clear? So this was about blind spot. Where do you get the blind spot? What is the location? Junction of retina and nerve cell, or you can say not nerve cell actually, sorry, you can say optic nerve, है ना? So junction of retina and optic nerve. Since the retina at that junction lacks, है ना, उसके पास क्या नहीं है? nerve cells, है ना? So nerve cells नहीं है तो क्या होगा? उधर जो अगर इमेज बनता भी है, you cannot sense. कैसे पता चलेगा इमेज बना? With the help of nerve cells. अगर वहाँ nerve cells ही नहीं है, मतलब क्या? That would be acting as blind spot. So there is one very nice activity given in textbook by which you can prove कि भाई blind spot है. तो वो एक्टिविटी please perform that activity. बस कुछ करना नहीं है, कुछ ऐसा बनाना नहीं है, बस वो बुक की मदद से जैसे जैसे उसमें स्टेप्स लिखे हैं उसे फॉलो करके वो एक्टिविटी ट्राई करके देखो. यू वुड बी एबल टू फील कि हाँ ब्लाइंड स्पॉट है. ठीक है, जहाँ पे इमेज नहीं बन सकता. क्यों? क्योंकि उस पोजीशन पे जो रेटिना मिलता है उसमें सेंसरी सेल्स नहीं होते. ब्लाइंड स्पॉट क्या है? जंक्शन ऑफ रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व. अब यहाँ तक के हमने 3 टर्म्स डिस्कस की, रेटिना, ऑप्टिक नर्व, ब्लाइंड स्पॉट. क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. सीलियरी मसल्स. अब सीलियरी मसल्स जो है, इस पे आने से पहले सीक्वेंस से जाते हैं. सो हमने रेटिना डिस्कस किया, हमने ऑप्टिक नर्व डिस्कस किया, हमने ब्लाइंड स्पॉट डिस्कस किया. 3. अब फोर्थ हम ले लेते हैं कॉर्निया. फोर्थ हम कॉर्निया लेते हैं. आई एम कमिंग टू सीलियरी मसल्स. फर्स्ट वी डू कॉर्निया. अब देखो कॉर्निया क्या है. तो देखो ये क्लियर है, ये वाला देखो, दिस इज द कॉर्निया. ठीक है, फ्रंट पोर्शन ऑफ द आईबॉल, आईबॉल का फ्रंट पोर्शन ऑफ द आईबॉल इज कॉर्निया. कॉर्निया इज मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल और यहाँ से आई के अंदर लाइट एंटर होती है. कॉर्निया का काम क्या है? इट प्रोटेक्ट्स एंड फोकसेस लाइट. लाइट को फोकस करने में कॉर्निया मदद करता है. तो क्या मैंने बोला कॉर्निया के बारे में? एक तो इट इज द फ्रंट पोर्शन ऑफ द आईबॉल, इट इज मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, इट इज द region from where the light enters in the eyeball. And what are the functions? 2 functions of cornea is it helps to focus light. Light को focus करने में cornea मदद करेगा. Apart from that, it protects the eye. It protects the eye. Clear? So this was all about cornea. तो fourth हो गया. Now we talk about next. Fifth, iris or iris. Whatever you feel like to spell, iris or iris. Now this is ये वाला portion. Just a minute. One shaded with red. ये कुछ दिखता है ना? और ये तो ये क्या हो गए? आइरिस. ठीक है, ये 2 है, पेयर ऑफ आइरिस. ठीक है, ये आइरिस जो है ये कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग थ्रू द आई. देखो कॉर्निया से लाइट एंटर तो होती है, जितनी भी लाइट मिल रही है सब इधर से एंटर होगी, लेकिन अंदर कितनी जानी चाहिए दैट इज कंट्रोल्ड बाय इरिस. सो कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग थ्रू आई. कॉर्निया से लाइट आ रही है, अब इरिस कंट्रोल करेगा कि कितनी लाइट आईबॉल के अंदर जानी चाहिए. अच्छा, तुमने देखा होगा कि आई का एक पर्टिकुलर कलर होता है.
जैसे अभी के if we talk about this era, people are having a trend to apply lenses. Not people but एक्टर एक्ट्रेस में देखा होगा कि वो लेंस लगाते हैं, तो उससे उनका आई बॉल का कलर चेंज हो जाता है ना, ग्रीन, ब्लू, ब्राउन, किसी का नेचुरल होता है तो कोई लेंस लगा के कलर चेंज करता है। अच्छा, लेंस लगा के कलर चेंज करना इज डिफरेंट थिंग, बट यूजुअली ज्यादातर लोगों में ब्लैक ही होता है, बट द शेड्स डिफर इन ईच पर्सन। कुछ डार्क ब्लैक होगा, कुछ लाइट ब्लैक होगा, कुछ ब्राउन होगा, कुछ ब्लू होगा, कुछ थोड़ा सा ग्रीन होगा, गेटिंग। तो ऐसे अलग अलग ये जो कलर है, कैरेक्टरिस्टिक कलर है आई का, दिस इज बिकॉज ऑफ इरिस। इरिस जो है वो आई को कैरेक्टरिस्टिक कलर देती है। नेक्स्ट, ब्राइट लाइट में जो इरिस है, मान लो ब्राइट लाइट आ रही, तो ये इरिस क्या करेगा, एक्सपांड करेगा। इरिस जो है वो एक्सपांड करेगा ब्राइट लाइट में। जैसे ही उसने एक्सपांड किया तो प्यूपिल की साइज रिड्यूस हो जाएगी। अब प्यूपिल क्या है, तो तुम्हारा 6th नंबर पे आ जाता है प्यूपिल। प्यूपिल इज द स्मॉल, मैं इस पे आ रही हूँ, स्किप नहीं किया, इस पे आ रही, पहले प्यूपिल समझते हैं फिर ये पॉइंट समझते हैं। अभी के लिए तुम्हें क्या पता चला इरिस के बारे में, कि इरिस जो है वो आई को कैरेक्टरिस्टिक कलर देती है और उसका मेन फंक्शन क्या है, इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन द आई। आई में जो अमाउंट ऑफ लाइट एंटर हो रही है उसको कंट्रोल करना, भाई कितनी आनी चाहिए, कितनी नहीं आनी चाहिए, दैट इज ऑल कंट्रोल्ड बाय इरिस। प्यूपिल जो है दिस इज द सेंट्रल ओपनिंग, ओके, स्मॉल ओपनिंग एट द सेंटर ऑफ द इरिस, इरिस के सेंटर पे, एंड इट अपीयर्स ब्लैक। प्यूपिल जो है वो ब्लैक अपीयर होता है, ठीक है। तो ये जो सेंटर ओपनिंग है इसको, इसकी साइज को रिड्यूस कर देता है। तो मान लो जब अगर ब्राइट लाइट आती है तो इरिस क्या करता है, एक्सपांड करता है। एक्सपांड कैसे करेगा, तो एक्सपांड वो ऐसा कर रहा है, ठीक है, अगर ऐसे देखें तो एक्सपांड वो ऐसा कर रहा है। ऐसा कर रहा है मतलब क्या, बीच की स्पेस कम हो रही है, बीच की स्पेस है क्या, प्यूपिल है, तो प्यूपिल की साइज को रिड्यूस कर, क्यों, ब्राइट लाइट है ना तो कम आनी चाहिए ना। मतलब जब भी ज्यादा रोशनी होती है, धूप को देखते तो कैसे आंखें ऐसी हो जाती है, क्यों ऐसी होती है, यू रिड्यूस द। अब इसका और अंदर का लेना देना अलग है, बट मैं कह रही कि जब ब्राइट लाइट होती है तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे करने की कोशिश करते हैं ना, आंखें ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो वो उसमें क्या होता है कि इरिस जो है वो एक्सपांड हो जाता है। तो एक्सपांड कैसे होगा, मान लो ये ऐसा है तो ये ऐसे एक्सपांड होगा, एक्सपांड होगा तो बीच का स्पेस जो है वो कम हो रहा है, कम हो रहा है मतलब प्यूपिल का साइज रिड्यूस हो रहा है। इसका जस्ट ऑपोजिट केस, मान लो अगर इधर मैं डल लाइट बोलती, ठीक है, या डिम लाइट, तो डिम लाइट में क्या होगा, इसका उल्टा, इरिस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यानी इरिस है ना वो दूर चला जाएगा, दूर चला जाएगा तो क्या होगा, प्यूपिल का साइज इंक्रीज हो जाएगा, है ना। प्यूपिल का साइज अगर इंक्रीज हो गया मतलब क्या, ज्यादा से ज्यादा लाइट अंदर आएगी, ज्यादा से ज्यादा लाइट अंदर जाएगी तो क्या है, तुम डिम लाइट में अच्छे से देख सकते हो। तो दिस इज हाउ इरिस इज रिलेटेड विद प्यूपिल। प्यूपिल का साइज कम ज्यादा करना है इज डन बाय इरिस, एंड दिस डिपेंड्स ऑन, ये साइज कम ज्यादा किसके पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द लाइट इन द सराउंडिंग, ब्राइट लाइट है कि डिम लाइट है। एक ही याद रखो, ब्राइट लाइट में क्या होता है, डिम लाइट में इसका जस्ट ऑपोजिट। ब्राइट लाइट में क्या होता है, तो इरिस एक्सपांड होता है, एज अ रिजल्ट एक्सपांड होता है, एज अ रिजल्ट द साइज ऑफ द प्यूपिल रिड्यूसेस। क्लियर? सो दिस वाज अबाउट इरिस प्यूपिल। नाउ नेक्स्ट इज एक्वस ह्यूमर। तो ये यहाँ पे क्या होता है, एक्वस ह्यूमर होता है, ये दिस पोजीशन में, ठीक है। तो ये एक्वस ह्यूमर जो है इट इज बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस, दिस इज लेंस। तो लेंस और कॉर्निया के बीच में जो लिक्विड होता है, कैसा लिक्विड होता है, ट्रांसपेरेंट लिक्विड, ट्रांसपेरेंट लिक्विड बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस, है ना, दैट इज एक्वस ह्यूमर, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या आता है, लेंस। देखो अंदर लेंस दिख रहा है, लेंस, लेंस क्या है, लेंस इसमें कौन सा है, कॉन्वर्जिंग की डाइवर्जिंग, देखो कॉन्वर्जिंग लेंस, कौन सा लेंस होगा ये, कॉन्वर्जिंग है तो कौन सा होगा,
कॉन्वेक्स, तो ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस या कॉन्वर्जिंग लेंस होता है हमारे आई के अंदर। नेक्स्ट, मेड ऑफ जेली लाइक सब्सटेंस, ये जो लेंस है ये जेली लाइक सब्सटेंस से बना हुआ होता है। ये कॉन्वर्जिंग लेंस है या कॉन्वेक्स लेंस भी कह सकते हो। नेक्स्ट, ये लेंस को पोजीशन में पकड़ रखने के लिए ना, ये इधर उधर ना खिसक जाए, इसको पकड़ के कौन रखता है? तो देखो ये ब्लू कलर का तुम्हें कुछ दिखता है, ब्लू वाला शेडेड रीजन, ध्यान से देखना, ये और ये, तो ये ब्लू वाला शेडेड रीजन इज नोन एज सीलियरी मसल्स। ठीक है, तो हमने 7th डिस्कस किया एक्वस ह्यूमर, 8th डिस्कस किया लेंस, 9th नंबर पे आ गया सीलियरी मसल्स। ये सीलियरी मसल्स कीप लेंस इन पोजीशन, एक तो काम इनका ये हुआ। दूसरा काम क्या? चेंज द थिकनेस ऑफ लेंस, लेंस की थिकनेस को चेंज करनी हो तो सीलियरी मसल्स काम आती है। अब इसका रीजन क्या है, क्यों भाई हमको लेंस की थिकनेस को चेंज करनी है? तो अभी मैं बस इसमें थोड़ी देर में अकोमोडेशन ऑफ आई में आ रही हूँ, तब मैं बताऊंगी कि क्यों जरूरत पड़ती है टू चेंज द थिकनेस ऑफ लेंस। तुमने अगर याद हो तो फोकल लेंथ या फोकस, प्रिंसिपल फोकस के बारे में जब पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था कि अगर जितना थिक होगा लेंस उतना ज्यादा वो लाइट को बेंड कर सकेगा और उतनी ही कम उसकी फोकल लेंथ होगी। यानी क्या कि जितना ज्यादा लेंस मोटा होगा, थिक होगा, उतनी कम उसकी फोकल लेंथ होगी और उतना ज्यादा वो लाइट को बेंड कर सकेगा। ये बेसिक कंसेप्ट तो हमें पता है, लेकिन ये लेंस क्यों ऐसा करता है, क्यों नीड है लेंस की थिकनेस को चेंज करने में? व्हाई देयर इज अ नीड? सो दैट वी वुड बी स्टडीइंग इन दिस टॉपिक। ओके, जस्ट नाउ फॉर दिस यू हैव टू रिमेम्बर कि सीलियरी मसल्स के दो काम होते हैं। एक तो लेंस को उसकी पोजीशन पे ही रखना, अगर कुछ भी तुम मूवमेंट करते तो लेंस का इधर उधर है ना बाउंस अप ना हो, है ना, टू मेक द लेंस कीप इट इन, यू नो, मेक द लेंस बी इन अ पोजीशन। ओके, सीलियरी मसल्स आर देयर। अपार्ट फ्रॉम दिस, सीलियरी मसल हेल्प इन चेंजिंग द थिकनेस ऑफ लेंस। ठीक है, नेक्स्ट सीलियरी मसल्स के बाद अब लास्ट जो बचा है दैट इज यू नो दिस, इतना सा बड़ा सा रीजन है, दैट इज नथिंग बट विट्रियस ह्यूमर या विट्रस ह्यूमर, जो भी बोलना है तुम्हें, सिर्फ स्पेलिंग याद रखो, वो बहुत बड़ी बात हो गई। ये जो है ये है जेली लाइक सब्सटेंस, ट्रांसपेरेंट जेली लाइक सब्सटेंस, transparent jelly like substance which is found between lens and retina. तो aqueous humor is different from vitreous humor. कैसे? तो aqueous humor is a transparent liquid but vitreous humor is a jelly like, transparent jelly like substance, okay, and is found between lens and retina, while aqueous humor is found between cornea and lens, or you can say pupil, ये pupil है। Getting? So this was all about, तो ये 10th तुम्हारा पार्ट हो गया। ठीक है, कुछ भूल तो नहीं रहे? नहीं भूल रहे। तो दिस was all about what I। स्टार्ट करते हैं फिर से, थोड़ा सा फटाफट से रिवाइज करते जाते हैं एंड देन वी वुड बी मूविंग डाउन टू नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अकोमोडेशन ऑफ आई। बिफोर मूविंग टू दैट, फर्स्ट वी स्टार्टेड विथ रेटिना। रेटिना क्या है? वो स्क्रीन है जहाँ पे इमेज फॉर्म होगी। किसकी इमेज फॉर्म होगी? आई जिस ऑब्जेक्ट को देख रही है उसकी इमेज फॉर्म होगी। वो फॉर्म किस पे होगी? तो स्क्रीन पे होगी। वो स्क्रीन मतलब कौन सा पार्ट है आई का? रेटिना। दूसरा क्या कि रेटिना हैव सेवरल नर्व सेल्स विच सेंस इमेज। उसके पास नर्व सेल्स है, दो तरह के नर्व सेल्स है। वन sensitive to bright lights and can detect color, that is cones, and another rods, they are sensitive to dim light. रेटिना। अब जो इमेज फॉर्म होता है उसका नेचर क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड is the nature of the image formed on retina, and what is the size of the image is smaller than the object. ठीक है, तो नर्व सेल्स अगर इमेज को परसीव कर रहे हैं, सेंस कर रहे हैं, तो वो ब्रेन को भेजेंगे कि भाई हमें ये ऑब्जेक्ट मिला।
ब्रेन तक कैसे जाएगा? विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिक नर्व. सेकेंड टर्म ऑप्टिक नर्व सेंड्स द इमेज ओके टू द ब्रेन. ब्रेन क्या करेगा? इमेज को इंटरप्रेट करेगा, वो इमेज को सीधा करके करेक्ट साइज करके फिर देगा वापस कि भाई ऐसा है एक्चुअल में ऑब्जेक्ट. क्लियर? नेक्स्ट हमने पढ़ा ब्लाइंड स्पॉट. व्हाट इज ब्लाइंड स्पॉट? इज द जंक्शन ऑफ रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व. इस पोजीशन पे रेटिना में नर्व सेल्स नहीं होते. अगर नर्व सेल्स ही नहीं है तो अगर इमेज बनेगी भी तो भी हमें पता नहीं चलेगा. तो मैंने कहा कि एक एक्टिविटी दी है, यू प्लीज ट्राई दैट. ठीक है, बस बैठे बैठे वो जो स्टेप बाय स्टेप बोला वही करना है. कुछ उसमें तुम्हें पेंसिल उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. एक बार ये जरूर ट्राई करना, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो, है ना. बहुत अच्छी एक्टिविटी है एंड यू कैन फील दैट यस एक्चुअली देयर इज अ ब्लाइंड स्पॉट. ओके, नेक्स्ट फोर्थ हमने देखा कॉर्निया. कॉर्निया जो है इज द फ्रंट पोर्शन ऑफ द आई बॉल. ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल. हाँ, और क्या कि लाइट एंटर्स थ्रू द आई फ्रॉम दिस रीजन. कॉर्निया से लाइट अंदर आती है. फंक्शन क्या है? प्रोटेक्ट्स द आई. उसके अलावा फोकस द लाइट. लाइट को फोकस करना कि भाई इतनी सारी लाइट है तो कैसे अंदर आएगी आई के, उसको इसे फोकस करके फिर आई के अंदर डालना है. लाइट ऐसी है तो उसको फोकस करके फिर अंदर आना है. वो फोकस करने का काम भी कॉर्निया का है. अच्छा, वो सिर्फ फोकस करेगी लेकिन अमाउंट कौन रेगुलेट करेगा? कितनी लाइट अंदर जानी चाहिए कितनी नहीं, तो वो है इरिस. ठीक है, इरिस जो है ये देखो, ये दो इरिस है ना, पेयर ऑफ इरिस. So this controls the amount of light which is entering in the eye through cornea. Next, gives characteristic color to eye. ठीक है, जैसे येलो, मैंने बोला येलो नहीं, मतलब थोड़ा सा ग्रीन होगा, ब्राउन के अलग अलग शेड्स होंगे, ब्लैक के अलग अलग शेड्स होंगे. गेटिंग? So the characteristic color is obtained to the eye by iris. अब इरिस अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल कैसे करेगा? बाय कंट्रोलिंग द साइज ऑफ प्यूपिल. सो प्यूपिल क्या, एक स्मॉल ओपनिंग है एट द सेंटर ऑफ इरिस. इरिस के सेंटर में स्मॉल ओपनिंग है, तो अमाउंट ऑफ लाइट वो उसकी साइज को कम करके ज्यादा करके रेगुलेट करेगा. किसकी साइज को कम ज्यादा करेगा? प्यूपिल. ठीक है, और प्यूपिल जो है वो ज्यादातर ब्लैक ही अपीयर्स, ब्लैक ज्यादातर क्या ब्लैक ही है. बट जो कलर है, जो आई को कलर मिलता है इज बिकॉज ऑफ इरिस. ठीक है, तो अगर मान लो ब्राइट लाइट है तो इरिस में क्या होगा? इरिस विल एक्सपांड. एक्सपांड कैसे करेगा? ऐसे एक्सपांड करेगा. इरिस ऐसे एक्सपांड करेगा, तो एज अ रिजल्ट प्यूपिल की जो साइज है वो रिड्यूस हो जाएगी. प्यूपिल की साइज जैसे ही रिड्यूस हो जाती है तो क्या होता है कि वो जो ब्राइट लाइट है इतनी वो कम आएगी, मतलब लाइट को कम कर दिया, है ना. सो एक्सपांड होता है इरिस खुद और रिड्यूसेस द साइज ऑफ प्यूपिल इन केस ऑफ ब्राइट लाइट. अब इसी का उल्टा ले लें कि अगर डिम लाइट हो या डल लाइट हो तो क्या होगा? इरिस वुड कॉन्ट्रैक्ट. तो कॉन्ट्रैक्ट वो ऐसा होगा, एज अ रिजल्ट द साइज ऑफ प्यूपिल विल इंक्रीज होगा, तो ज्यादा से ज्यादा लाइट वो अंदर ले सकता है ताकि तुम डिम लाइट में अच्छे से क्लियरली देख सको. गेटिंग? नेक्स्ट वी लर्न अबाउट एक्वस ह्यूमर. is nothing but a transparent liquid found between cornea and pupil या cornea and lens. उसके बीच में जो तुम्हें ट्रांसपेरेंट लिक्विड दिखता है that is nothing but aqueous humor. नेक्स्ट लेंस. लेंस जो है इस आई में, ह्यूमन आई में जो लेंस होता है that is converging lens. Converging lens is also known as convex lens. Getting? So converging lens is also known as convex lens. Here the lens is made up of jelly-like substance. This lens is made up of jelly-like substance. Is a convex lens. Okay, and to make this lens remain in this position, okay, ciliary muscles are there. You see blue colored shaded region, ciliary muscles. They keep this lens in a fixed position. Apart from this ciliary muscles change the thickness of lens. What is their need? We would be reaching to that. Next, we studied about what? Vitreous humor. Vitreous humor is a jelly-like substance found between lens and retina. Okay,
So there is a difference between vitreous humor and aqueous humor, which I have already discussed. It is a transparent liquid. It is a transparent jelly-like substance. It is found between cornea and pupil, or you can say cornea and lens, and it is found between lens and retina. Clear? So this was all about structure of eye. Okay, how the brain perceives this object. Okay, how the optic nerves are involved in this. Okay, now we are going to start with next topic, that is accommodation of eye. तो मैं जब भी बोलती हूँ accommodation of the eye, accommodation of the eye, है क्या ये? So the ability of the eye to alter the focal length of its lens so that it can clearly, यहाँ पे तुम्हारा आंसर है, so that it can clearly see all the objects within a certain range is known as accommodation of the eye. Is known as accommodation of the eye. देखो क्या बोला, accommodation of the eye क्या, ये एक एबिलिटी है आई की to change its focal length. कैसे चेंज कर रही है focal length? By changing the thickness of the lens. लेंस की थिकनेस को मैं कम ज्यादा करती हूँ, मतलब अल्टीमेटली मैं फोकल लेंथ चेंज कर रही हूँ. सो द एबिलिटी ऑफ द आई टू चेंज द थिकनेस और द फोकल लेंथ, ओके, ऑफ द लेंस, ओके, दैट इज नथिंग बट अकोमोडेशन ऑफ आई. व्हाई देयर इज अ नीड, अब वहां पे आते हैं. सो दैट इट कैन क्लियरली सी ऑल ऑब्जेक्ट्स, है ना. कैसे? क्योंकि देखो डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड रेटिना इज कांस्टेंट, इज सेम. देखो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, लेंस और रेटिना के बीच का जो डिस्टेंस है, वो तो कांस्टेंट ही रहता है. लेकिन जो तुम्हारे आसपास ऑब्जेक्ट्स देखते हो, उनका पोजीशन तो चेंज है, कुछ बहुत दूर है, ठीक है. मून डिस्टेंस अपार्ट, इतना दूर मून देखते हो, इतने दूर स्टार्स देखते हो, इतना दूर सन देखते हो, ठीक है. और कुछ चीजें इतनी पास देखते हो, मान लो तुम एक बुक रीड कर रहे हो, अभी मार्कर पे क्या लिखा है मैं वो पढ़ रही हूँ, फुट लेबल्स चेक करते हो, तो इतना पास भी पढ़ते हो और इतना दूर ऑब्जेक्ट्स को भी देखना है. दोनों चीजें तुम्हें करनी, दूर भी देखना है, एकदम पास भी देखना है. और ये भी है कि जो डिस्टेंस है या जो लेंथ है बिटवीन लेंस एंड रेटिना इज कांस्टेंट. तो भाई फिर कैसे पॉसिबल है? क्योंकि जैसे अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होगी तो इमेज का पोजीशन भी तो चेंज होगा. लेकिन तुम्हें हर बार इमेज रेटिना पे ही चाहिए. अगर रेटिना के अलावा कहीं और इमेज बना, यू वोंट बी एबल टू सी, बिकॉज रेटिना के पास नर्व सेल्स हैं और ये नर्व सेल्स ही इमेज को सेंस कर पाएगी. जब तक नर्व सेल्स ने इमेज को सेंस नहीं किया, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि भाई सामने ऑब्जेक्ट है कि नहीं, है ना. कभी हम डिफेक्ट्स ऑफ विजन में भी देखेंगे, जहां पे इमेज या तो पहले बन जाता है या रेटिना के पीछे बनता है. बट हम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स अलग अलग डिस्टेंस पे देख रहे हैं, वो भी एक ही आंख, और उसमें भी ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट है. और मैं चाहती हूँ इमेज हर बार रेटिना पे ही बने, ना रेटिना के पीछे ना आगे, मुझे रेटिना पे ही चाहिए. फॉर दैट देयर इज ओनली वन वे टू चेंज द थिकनेस ऑफ द लेंस. फोकल लेंथ को चेंज करके हम दूर और पास का देख सकते हैं, ठीक है. बाय चेंजिंग द थिकनेस ऑफ आई we can achieve this thing, that is accommodation of eye. कैसे? तो मान लो तुम फार ऑफ ऑब्जेक्ट देख रहे हो, एक ऑब्जेक्ट है जिसको तुमने दूर रखा है. जब तुम ऑब्जेक्ट है जो बहुत दूर है, सपोज तुम मून को देख रहे हो, है ना, तो क्या हो रहा है कि जो सीलियरी मसल्स हैं, जो सीलियरी मसल्स हैं, ये क्या होंगी? रिलैक्स्ड, मतलब एक्सपांड हो रही है. अब जब ये एक्सपांड होंगी तो लेंस क्या होगा? थिन होगा. देखो ये सीलियरी मसल्स को मैं एक्सपांड करती हूँ, ऐसे खींचती हूँ, तो लेंस थिन होता जाएगा. समझ रहे हो? ये लेंस क्या होगा? थिन होगा. सीलियरी मसल्स रिलैक्स्ड, लेंस बिकम थिन. लेंस थिन हो रहा है, फोकल लेंथ क्या होगी? इंक्रीज. फोकल लेंथ वुड बी मोर, है ना. फोकल लेंथ वुड बी मोर, और यू कैन से फोकल लेंथ वुड इंक्रीज. ओके, अब इसका जस्ट रिवर्स. मान लो जब तुम्हें कोई नियर बाय ऑब्जेक्ट देखना है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें सीलियरी मसल्स जो है वो स्ट्रेन्ड, कॉन्ट्रैक्ट होती है. जब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होगी तो क्या होगा? ये लेंस को मान लो दबाते हैं तो क्या होगा? ये मोटा होगा, थिक होगा. सो द लेंस वुड बिकम थिक. एज अ रिजल्ट द फोकल लेंथ वुड डिक्रीज. एज अ रिजल्ट द फोकल लेंथ वुड डिक्रीज. Okay, the focal length would decrease. So this is how
by changing, by the action of ciliary muscles, by changing the thickness of the lens, what we can do, we can get the image on the retina. फिर चाहे तुम दूर वाला ऑब्जेक्ट देखो या पास वाला ऑब्जेक्ट देखो, हर बार तुम्हें इमेज जो है वो किस पे मिलेगा, रेटिना पे मिलेगा. समझ आ रहा है. और ये फोकल लेंथ को इंक्रीज और डिक्रीज कैसे कर रहा है वो पता चला ना. लेंस थिन और थिक हो रहा है, थिन और थिक से फोकल लेंथ भी चेंज हो रहा है. ठीक है. तो जब दूर के ऑब्जेक्ट को देखते हो तो सिलियरी मसल्स एक्सपांड होती है, एज अ रिजल्ट लेंस थिन होता है. थिन होता है तो फोकल लेंथ बढ़ जाती है, फोकल लेंथ बढ़ जाती है. ठीक है. तो क्या होता है, तुम आसानी से जो फार ऑफ ऑब्जेक्ट है उसको देख सकते हो. जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तुम्हारा लेंस है. देखो लेंस थिन है क्योंकि अभी जो सिलियरी मसल्स है ये एक्सपांडेड है, ये इसको खींच रही है अपने तरफ ऐसे. तो लेंस थिन हो गया. तो जो इनफाइनाइट से रेस आ रही है वो फोकस होकर रेटिना पे इमेज बना रही है. गेटिंग. बट इन दिस केस क्या हो रहा है, लेंस देखो थिक हो गया. ठीक है. तो ये जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, नियर बाय ऑब्जेक्ट है ना, ये जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, एक जो होगा वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रे जाएगा और एक रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा. वेयर दे वुड बी मीटिंग इज द पॉइंट एट रेटिना. यहाँ पे जो तुम्हें ऑब्जेक्ट मिलेगा दैट वुड बी, नहीं ऑब्जेक्ट नहीं, मतलब जो ये मिलेगा दैट इज द इमेज. इमेज कैसी होगी, रियल, इन्वर्टेड, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट. ठीक है. उसको सीधा करके करेक्ट साइज कौन करेगा, ब्रेन. ब्रेन तक कैसे जाएगा, ऑप्टिक नर्व से. गेटिंग. तो यहाँ पे क्या हुआ, जब थिक होता है तब क्या होता है, थिक लेंस होता है मतलब फोकल लेंथ छोटा हो गया और कुछ इस तरह से इमेज होगा. यहाँ पे थिन लेंस है, फोकल लेंथ ज्यादा है, तो फिर भी तुम्हें इमेज कहाँ मिल रहा है, रेटिना पे. पोजीशन चेंज नहीं हुआ, पोजीशन हर बार इमेज का तुम्हें रेटिना पे ही मिल रहा है. गेटिंग ना. एंड दिस रेस आर सी इंसिडेंट, ये भी इंसिडेंट रेस. एरो दिखाना है. So you see, every time you get the image on retina, this is because the ability of the eye to change the focal length of the lens, to alter the focal length of its lens. Alter मतलब change. Focal है ना, focal length of its length. ताकि तुम जो भी ऑब्जेक्ट है, चाहे तुम दूर वाले ऑब्जेक्ट को देख लो या तुम्हारे पास वाले ऑब्जेक्ट को देख लो, तुम्हें क्लियरली दिखे. ओके. दैट इज डन बाय आई विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल्स. ठीक है. एंड दिस एबिलिटी इज नोन एज अकोमोडेशन ऑफ द आई. अब इसमें बोल रहे हैं विद इन अ सर्टेन रेंज. अब कुछ रेंज तक ही देख सकते हो. देखो जैसे वो है 25, नॉर्मल ह्यूमन आई है वो कम से कम 25 सेंटीमीटर और दूर से दूर इनफाइनाइट तक देख सकते हैं. जहां तक तुम देख सकते हो वो तुम्हारा इनफाइनाइट. इनफाइनाइट मतलब ऐसा नहीं कि पूरा यूनिवर्स देख सकते हो इतना दूर. इनफाइनाइट मतलब जितना पॉसिबल है. ठीक है. जितना पॉसिबल है उतना तुम दूर तक देख पा रहे हो. ठीक है. 25 सेंटीमीटर कम से कम डिस्टेंस. अगर कम से कम तुम अपने आई और ऑब्जेक्ट का कम से कम डिस्टेंस क्या है, 25 सेंटीमीटर. तुम 25 सेंटीमीटर पे भी ऑब्जेक्ट को रखते हो ना तो क्या होगा, वो ब्लर दिखेगा. क्यों ब्लर दिखता है, क्यों हम 25 सेंटीमीटर के बाद ही वो उस डिस्टेंस के बाद ही ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं. क्योंकि अगर उसके अंदर होता है, मतलब अगर तुम्हारे आई और ऑब्जेक्ट के बीच में 10 है, 15 सेंटीमीटर यानी 25 से कम सेंटीमीटर है, तो क्या होगा, तो जो इमेज बनेगा ना वो ब्लर. तुम्हें ऐसा देखो, अभी अपने आंख के पास तुरंत पास में रख के देखो, क्या होता है, तुम्हें दिख रहा है कि हाथ है, मतलब तुम्हें ऑब्जेक्ट तो दिखेगा लेकिन वो ब्लर दिखने लगेगा. क्योंकि इमेज जो है वो रेटिना पे नहीं बन पाएगी. क्यों, क्योंकि बस अभी नियर ऑब्जेक्ट्स में क्या होता है कि ये फोकल लेंथ जितना डिक्रीज कर सकता था उतना ही कर पा रहा है, उससे ज्यादा नहीं हो रहा. इसलिए 25 सेंटीमीटर के अंदर जो भी हम ऑब्जेक्ट देखते हैं उनका इमेज हमें क्लियर दिखता नहीं है. क्यों, क्योंकि लेंस की वहां पे कैपेसिटी खत्म. वो बोलते हैं बस अब मैं और कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता. ठीक है. टू मेक यू शो द इमेज. समझ आ रहा है. तो ऐसा सबसे नियरेस्ट पॉइंट यहाँ कह सकते हो द लीस्ट डिस्टेंस जिसपे आई क्लियरली ऑब्जेक्ट को देख सकता है, दैट इज नोन एज नियर पॉइंट ऑफ द आई. लीस्ट डिस्टेंस है ना, जिसपे आपका आई ऑब्जेक्ट को देख सकता है, दैट इज नियर पॉइंट, दैट इज नोन एज नियर पॉइंट ऑफ द आई.
और सबसे दूर है ना, दूर जो भी जितना दूर से दूर तुम देख सकते हो, द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द आई एंड द ऑब्जेक्ट wherein you can see the object clearly, जो far off object को देख रहे हो उसको clearly देख सकते हो, that is known as far point of the eye. Clear? So this was all regarding accommodation of the eye and this was structure of eye, है ना, इसमें कौन कौन से पार्ट्स है, उनका क्या फंक्शन है, कहाँ पे अरेंज्ड है. ओके